Hello, my dear students. Welcome back and a very good afternoon once again to all of you all. Yes. Now, shall we go ahead? Let's start from where we left yesterday. So yesterday we began with coding, decoding. We were left with a few very important questions. We'll quickly cover those questions and go to a new chapter. Okay, kindly mute yourself and don't force me to keep on saying this one again and again. You are now, right? You now understand the importance of not disturbing others. Okay, let's start. Yes, we were lastly on question number 4. Okay, yes, in a certain code, page number 188. Are you all ready with me? This is a very important and a very interesting question. Yes, ma'am. Okay. In a certain code, flour is coded as 36 and sunflower is coded as 81. Then how to code follows. Okay, so पहले जो हमें question में दिया गया है, let's first take it down properly and then we shall decode. Okay, let's start. Yes, flour. How is flour coded as 36? Okay. How is sunflower coded as? It is coded as 81. We have to find out how follows is coded as. Okay. Yes. My dear students. Now. Yes. Now. What happens? What do we do? When you have alphabet and numbers, we go back to our trick. Right? We employ our trick, find out the number of the alphabets given and then take the addition. Right. ठीक है, चलो करते हैं. अपना trick क्या है? Come on. अपना trick क्या है? Yes, I'll write it here. Ice cream, lime juice, orange, toffee. Yeah. Right? It is 5, 10, 15, 20, 25. Okay. It is 5, 10, 15, 20, 25. Now what do we have to do? We have to find out the number of F. Come on. F कहाँ पे आता है? E के बाद है F. Correct? E 5. तो F will be number 6. ठीक है, लिख दिया हमने number 6. आगे L. L क्या होगा? J, K, L. J is 10. So 11, 12. ठीक है, 12 लिख दिया. आगे O. O is number 15. W, T, U, V, W. So 21, 22, 23. Fine. E is number 5. R is number O. P, Q, R. So it's how much? Come on. P, Q, R. That goes to how much? 18. 18. Now take the total, my dear students, and tell me what is the total. I'm waiting for your answers. Tell me what is the total. $73. How much? 79. Okay, whatever it is, now tell me, is the total matching what is given to us? Is it matching 36 by any chance? No. No, that means can we employ this trick? Can we employ this No, trick? ma'am. No. No, We ma'am. have to do some other trick. चलो अब सोचते हैं. 36. अब क्या कर सकते हैं जहां पे अल्फाबेट्स है, जहां पे नंबर्स है? यूजुअली तो हम यही करते हैं, अल्फाबेट्स का नंबर फाइंड आउट करके एडिशन लेते हैं. ठीक है, अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? Tell me how many alphabets are there in the word flower? F, L, O, 6. W, E, 6. R. 6 alphabets. 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36. कितना होता है? 36. ओके, अब सनफ्लावर में ये लॉजिक अप्लाई होता है क्या, देखते हैं. ओके, यस, टेल मी. सनफ्लावर के कितने अल्फाबेट्स? 9, 81. Yes. 9 का स्क्वायर 81. 7, 8, 9. 9 अल्फाबेट. सो 9 का स्क्वायर कितना है? 81. 81.
ओके यस नाउ अब फॉलोज में सेम लॉजिक हम लोग फॉलोज में अप्लाई करेंगे. देखते हैं फॉलोज की इस लेटर में कितने अल्फाबेट्स है. ओके 1 7. 2 7. 3 4 49. 5 6 7. So 7 square 49. What is your correct answer? B. B. Okay, is it simple, my dear students? Yes, ma'am. Okay, let's Yes, go ma'am. ahead further. Next question. In a certain code, LBP means roses are blue, sick he means red flowers, P mit he means flowers are vegetables. How is red written in that code? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको अच्छे से लिखेंगे. Let's start. Okay, let's write it down. Okay, L B P is written as what? Roses are blue. Sick. Just 1 minute. Yes. Sick he is written as red flowers. Okay. आगे उन्होंने क्या बोला है? P mit he. Please ignore the handwriting. Okay, because there's a few of technical issue also, उसकी वजह से clear भी नहीं दिख पा रहा है आपको. Okay, आज सब कुछ एक साथ ही हो गया. Flowers are vegetables. बहुत ही ज्यादा poor connection है आज. Okay, never mind. But we are not going to give up, right? Yes. Okay. Now, what's the question? How is red coded as? Okay. तो चलो पता करते हैं. Red मतलब क्या? Sick is stands for red. तो check करो क्या आपके alternatives में sick है? है? Yes, ma'am. Yes. So your correct answer is B for B. sick. Clear? Yes, ma'am. Okay. Let's go ahead further. Anyone having any doubts? आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलोगे प्लीज. Okay, let's go ahead with the next question. In a certain code language, again a very very interesting question. Dugo hui mulzo stands for work is very hard. Hui dugo baki for bingo is very smart. Nano muldugo for cake is hard. And mulkigo for smart and hard. ओके हमें किसी के मीनिंग में जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वो वर्ड लेना है और उसको क्या कोड दिया है वो देखना है. लेट्स स्टार्ट. ओके यस डुगो हुई मुल जो क्या सब कुछ लिखना जरूरी है? हाँ. कैन वी अफोर्ड टू लूज मार्क्स माय डियर स्टूडेंट्स? नो. वर्क इज वेरी हार्ड. ठीक. ओके फिर हुई डोगो बाकी. हुई डुगो बाकी is what? Bingo is very smart. ठीक है आगे नेक्स्ट क्या लिखा है? नैनो मुलडुगो. नैनो मुलडुगो केक is hard. Okay, fine, never mind. आगे मुल्किगु. मुल्किगु. Right? That is smart and hard. Fine. Now, what is the question? What do you actually have to find out? Tell me, my dear students. What do you have to find out? What would bingo stand for? Tell me. Bingo stands for what? If we go by the logic, the normal logic, bingo stands for hui. Now check. In the 4 alternatives, is hui an option? No, ma'am. No. So we have to come up with some other code. Okay, now tell me. Bingo, ये word और कहीं पे repeat हुआ है क्या? No, ma'am. नहीं, सिर्फ एक ही बार आया है बिंगो. करेक्ट. तो हमें ऐसा कोई उसका
कोड फाइंड आउट करना है जो कहीं पे भी रिपीट ना हुआ हो, सिर्फ बिंगो इज वेरी स्मार्ट में आया हो. ओके, यस, चेक करते. ओके, एवरीवन विथ मी, फुल कंसंट्रेशन. चेक. हुई कहीं पे रिपीट हुआ है क्या? चेक. हुई कहीं पे रिपीट हुआ है? Yes, ma'am. हुआ Yes, है. ma'am. तो चलो, दिस इज नॉट द आंसर. चेक. डुगो कहीं पे रिपीट हुआ है क्या? Yes, ma'am. ओके, तो डुगो भी गया. की कहीं पे रिपीट हुआ है क्या? Yes, ma'am. ओके. ma'am. बा कहीं पे रिपीट हुआ है क्या? No, ma'am. Okay, so what is your correct answer? Bingo Ba. stands Ba. for ba. So your correct alternative is D. alternative D. Okay, is it interesting? As and how we are going ahead, नए techniques हमें पता चल रहे हैं, नए types of problems हम लोग solve कर रहे हैं. Okay, shall we go ahead? Yes. Further. Yes, ma'am. Question 7. If rain is called water, water is called air, air is called cloud, cloud is called sky, sky is called sea, sea is called road, where do the aeroplanes fly? Where do the aeroplanes fly? अब अगर ये क्वेश्चन हम लोग ठीक से देखें तो इट्स मोर ऑफ अ सिंपल क्वेश्चन. यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? वेयर डू द एरोप्लेन्स फ्लाई. तो हमें पता है एरोप्लेन्स फ्लाई इन दी वेयर डू द एरोप्लेन्स फ्लाई? Sky. स्काई. सो स्काई का कोड डायरेक्टली है क्या अपने पास? C. Yes, ma'am. हाँ, दिया हुआ है. C. बट अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो तो जस्ट राइट इट डाउन इन डिटेल. ओके, शैल वी गो अहेड? Yes, ma'am. Okay, further. Question 9. In a certain code language, $# means shirt is clean. Hash means clean and neat. @ means neat boy. Then what is the code for and in that language? Check. And कहाँ पे आया है? इस कोड में आया है Clean and neat. Yes, इस कोड में आया है. And, right? So, can I say कि D is equal to and? चेक करो. क्या आपके ऑल्टरनेटिव्स में डी का ऑप्शन है? सो क्या shall I quickly circle the alternative D? फटाफट में ऑल्टरनेटिव डी को सर्कल कर दूं क्या? समझ में नहीं आया सवाल? नहीं, आंसर डी है पर ऑल्टरनेटिव बी है. आंसर डी है पर ऑल्टरनेटिव बी है. ओके, फिर से एक्सप्लेन करूं. ओके, नाउ @D# means what? Clean and neat. So and is the middle alphabet and D is the middle alphabet. So and D correlate with each other. Fine. अब alternative में D है क्या है? मतलब वो अपना आंसर लॉजिकल है. अब मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल ये है कि मैंने आंसर फाइंड आउट कर लिया दैट आंसर हैज टू बी डी. तो मैं फटाफट मेरे एमसीक्यू के शीट पे गई एंड मैंने सर्कल कर दिया डी. Will I get full marks? No. Answer is D, but alternative is B. गड़बड़ में, प्रेशर में, क्विकली इज देयर पॉसिबिलिटी कि हम ये सिली मिस्टेक्स करें? यस, बट क्या हमें करना चाहिए? नो. अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. Okay? Yes, ma'am. Yes. So our correct answer will be alternative B. And answer is D. Okay. Let's go ahead further to question number 10. Yes. If A stands for plus, B stands for minus, C stands for multiplication, what is the value of 10C4A4C4B6? ओके, तो इट्स वेरी सिंपल. हमें सिर्फ क्या करना है? उन्होंने दिए हुए सिंबल्स को सब्स्टिट्यूट करना है. लेट्स स्टार्ट. 10. A stands for what? A stands for plus. So 10 plus 4. Okay, then A means what? Addition. ठीक है. Okay, wait. I've made a mistake. I'm sorry. Yes, it should be 10 into, C stands for multiplication. No? Yes. 10 into 4 plus 4C4 means 4 into 4. And B is what? B stands Minus. for minus. Minus. बता.
10 into B. 4, 40 plus 4 into 4, 16 minus 6. मतलब आंसर कितना आया? 50. 50. Alternative? B. Alternative B is the correct answer. Anyone having any doubts? No, ma'am. No? Okay, shall we go ahead with a fresh, nice, interesting chapter? मैम फिफ्थ क्वेश्चन में मुझे अभी भी प्रॉब्लम हो रही है. कौन से हेलो क्वेश्चन में? मैम फिफ्थ क्वेश्चन में एक्चुअली मैम वो टेक्निकल इशू हो गया था, फिर मेरे को समझ में नहीं आया आगे का. Okay, fifth question. So let's come to fifth question. My dear students, kindly give us some time. Yes, fifth question. LBP, roses are blue. Sikhi, red flowers. P mithi, flowers are vegetables. How is red written? अब बताओ red कहाँ पे आया है? Red flowers, correct? Sikhi, बराबर है? तो first and first. Yes, red ma'am. and Sikh. Is it okay now? यस मैम, अब क्लियर हो Okay. गया. Yes. Yes. Let's come to a new chapter. Come to page number 2. Come to page number 225. 225. Everyone. Come to page number 225. So our chapter, new chapter that we begin today is series of alphabets. Series of alphabets. जितना हो सके मैंने कोशिश करी है कि नंबर और अल्फाबेट से जो भी रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हो उतने हम एक साथ सॉल्व करें ताकि आप लोगों को एक्चुअली समझ पाए कि हमें लॉजिक किस तरीके से किस प्रकार से अप्लाई करना है. Okay, yes. So our next chapter is series of alphabets on page number 225. Okay, now before going ahead, okay, I want to tell you one very, very, very basic thing. Okay, what is it? See, there are, okay, whenever we speak of alphabet series, it is always A to Z. Any doubts? Any doubts here? A to Z, correct? Now, there are two types of series. One is forward series. One is forward series. And one is backward series. Okay? Forward series मतलब क्या? जो A से चालू होती है. A, B, C to Z. और backward series मतलब क्या? Z से A की तरफ. Z, Y, X goes to E. Do you understand? इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है बट ये हमें पता होना बहुत जरूरी है. फॉरवर्ड सीरीज मींस फ्रॉम A to Z and backward series means from Z to A. Clear, my dear students? Okay, yes, let's go ahead further. Question number 1. Which of the following options is fifth to the left of the 11th letter from the left in the forward series of the alphabet? Okay, मतलब उन्होंने अपने को नंबर बोला है, हमें काउंटिंग करना पड़ेगा. Okay, सबसे पहले तो बेसिक सीरीज कौन सी है? फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है? फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है? Forward. तो हम अगर फॉरवर्ड सीरीज के बारे में बात करें तो इट इज A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. अब क्या बोला है उन्होंने? Which of the following options is fifth to the left of 11th letter from the left? मतलब सबसे बेस कौन सा है? सबसे पहले हमें 11th लेटर फाइंड आउट करना पड़ेगा. 11th लेटर फाइंड आउट करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? फिफ्थ अल्फाबेट कौन सा है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा. Okay, so first we have to find out the 11th alphabet and then we will find out the fifth alphabet. Okay, so let's start. Let's find out the 11th letter from the left in the forward series. Come on, everyone with me. Let's find out which is the 11th alphabet. Come on. 1, 2. Okay. Do you want me to tick? Okay. 1, K. 2,
3, 4, Ma'am, 5, K. 6, 7, K, 8, K. 9, 10, 11. Right? So K is my 11th alphabet. Any doubts? Any doubts? No? No, इसके आगे no, उन्होंने क्या ma'am. बोला है? Fifth to the left. Okay? To the left. मतलब लेफ्ट जाएंगे तो इस तरफ जाएंगे, राइट जाएंगे तो इस तरफ जाएंगे. Okay? To the left बोला है उन्होंने. So let's move 5 steps to the left from K. Okay? So our time starts now. 1, 2, yes, 1, 2, 3, 4, 5. Actually, my dear students, अगर हम लोग आइडियली देखें तो पहला नंबर आएगा J, फिर आएगा I, फिर आएगा H, फिर आएगा G और फिर आंसर आना चाहिए F. बट क्योंकि आपके मॉड्यूल में दिया हुआ नहीं है, ओके, वो आंसर ऑल्टरनेटिव दिया ही नहीं है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप वहां पे ऐड कर दो नंबर F. ओके, यस. थोड़ी बहुत टाइपो मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटी हमेशा रह जाती है. ओके, यस, लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर नहीं आया तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा हम लोग और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो जैसे जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस होगी, आप लोगों को इजी जाएगा. और फिर भी नहीं समझा तो आई एम ऑलवेज देयर विद यू. यस, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द लेटर गैप इन द वर्ड चेयर्स. बहुत ध्यान से सुनना. In the word chairs, how many pairs of the letters have the same number of letters between them in the word as in the alphabet? I repeat, how many pairs of the letters have the same number of letters between them in the word as in alphabet? मतलब क्या? ये क्वेश्चन हमें कहना चाहती है कि अगर हम A, B और C देखें, ओके, तो क्या है? A और C के बीच में एक अल्फाबेट है, दैट इज B. ओके, तो आप ऐसे ही कॉम्बिनेशंस चेयर्स इस वर्ड में ढूंढ के निकालिए. ओके, जो अपने ओरिजिनल अल्फाबेट सीरीज में भी वैसे होने चाहिए और चेयर्स इस वर्ड में भी वैसा होना चाहिए. ओके, तो चलो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ. इट विल बी मच इजियर फॉर यू ऑल. यस, चेयर्स. अगर हम लोग चेयर्स देखते हैं, ओके, तो थोड़े कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स वगैरह थोड़े से एनालाइज करो. क्या यहाँ पे C और H है? सॉरी, C और A है. क्या यहाँ पे C और A है? और A और C के बीच में बराबर एक ही अल्फाबेट है, H. बिल्कुल इसी तरह A और C है और उसके बीच में एक ही अल्फाबेट है, B. क्या इसी प्रकार से सेटिंग है? यहाँ पे A और C है और बिल्कुल उनके बीच में एक ही अल्फाबेट है, राइट? Yes, ma'am. This is pretty similar to our alphabet series. तो ये हुआ आंसर नंबर 1. ओके, अब आगे देखते हैं. अगर आगे हम लोग H देखें तो H के बाद इमीडिएटली ओरिजिनल अल्फाबेट सीरीज में क्या आता है? HI. बराबर है, मतलब कॉन्जिक्यूटिवली होना चाहिए, उनके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे उनके बीच में है. सो कैन वी टेक दैट एज एन आंसर? नो मैम. ओके, अब हम अगर आगे देखें तो A का C तो हो गया है, I का H हमने देख लिया कि वो नहीं हो सकता. अब R और S देखें तो कम ऑन, R and S, टेल मी. थिंक. Yes, ma'am. क्या वो कॉन्जिक्यूटिव है A to Z की अल्फाबेट सीरीज में? Yes, क्या वो एक के बाद एक आते हैं? क्या यहाँ पे बिल्कुल एक के बाद एक है? Yes, ma'am. Yes. So what should be your correct answer? A. Option D, answer 2. Option D. Option D should be your answer. But आपके मॉड्यूल में आंसर दिया हुआ है 1, which should be answer 2. That is alternative D. Understanding, my dear students? Yes, ma'am. No, किसी ने बोला? No, ma'am. Yes, no, ma'am.
नहीं समझ में आया? नो मैम। I repeat. उन्होंने क्या बताया है हमें क्वेश्चन में? उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया है कि आप ऐसे पेयर्स ऑफ लेटर्स, आप ऐसा सीक्वेंस पकड़ो। ओके, अपना बेस क्या है? अल्फाबेट सीरीज का बेसिस हमेशा ए बी सी डी टू जेड और जेड वाई एक्स टू ए, ठीक है। फॉरवर्ड सीरीज इज ए टू जेड, बैकवर्ड सीरीज इज जेड टू ए, ठीक है। ये अपना बेस हुआ अल्फाबेट सीरीज का। ओके, नाउ अब उन्होंने क्या बोला है, अल्फाबेट सीरीज में एक सीक्वेंस होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी, तो अगर ए और सी है तो उनके बीच में एक अल्फाबेट है। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो नो मैम। हमें नो मैम। सेटिंग हुए सीक्वेंस यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देयर इज सी, यस, देयर इज ए, और इनके बीच में बिल्कुल एक ही अल्फाबेट है, एच। हाँ या ना? यस मैम। करेक्ट? यस मैम। अपने अल्फाबेट सीरीज में ए सी और उसके बीच में है बिल्कुल एक ही अल्फाबेट बी। यस मैम। यस मैम। मतलब बाकी दोनों एंड सेम और बीच में एक अल्फाबेट। बिल्कुल इसी तरह चेस में सी ए और बीच में एक ही अल्फाबेट। सो इज दिस सिमिलर टू योर अल्फाबेट सीरीज? हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये एक तो मिल गया। अब आगे एच, एच देखा तो एच के बाद तुरंत क्या आता है? आई। क्या इस वर्ड में आई है? पर अगर आप लोग इसकी सेटिंग देखोगे तो एच ए आई, पर अपने ओरिजिनल सीरीज में एच के इमीडिएटली बाद आई होता है। मतलब वो लोग एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के होने चाहिए, राइट? बट उनके बीच में है ए। सो इज इट सिमिलर टू द ओरिजिनल अल्फाबेट सीरीज? नो मैम। ओके, अब आगे चलो। अब आई का देख लिया, ए का हो गया। अब आर एंड एस, पी क्यू आर एस, ये अपना ओरिजिनल अल्फाबेट सीरीज हुआ। मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ होने चाहिए। क्या यहाँ पे चेयर्स में भी वो लोग एक दूसरे के साथ है? यस मैम। So is that setting similar to our original alphabetical series? यस मैम। Okay. Is it Yes, similar? ma'am. Yes. So एक आंसर आया CHA, एक आंसर आया RNS. So कितने सीरीज हुए? दो पेयर्स हुए, करेक्ट? So our answer should be D2. Clear everyone? Yes, Yes, ma'am. Okay. Next. In the name of a game, if the name of a game is formed by rearranging the letters mod bantin, then what will be the first and last letter of the name? बताओ, ये letters पढ़ के कौन सा गेम आपको याद आता है? बैडमिंटन। वेरी सिंपल। अगर हमने इन अल्फाबेट्स को रीअरेंज किया तो उससे कौन सा गेम आइडेंटिफाई होता है? बैडमिंटन, ठीक है। बैडमिंटन, ठीक है। अब मुझे बताओ उन्होंने क्या पूछा है? व्हाट विल बी द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर? फर्स्ट लेटर इज बी। बी, लास्ट लेटर इज एन, सो बी एन एन। सो करेक्ट ऑल्टरनेटिव इज सी। बी। Okay, my dear students, is it easy? Is it Yes. interesting? Yes, ma'am. Let's go ahead further. Arrange the question based on the initial letter of the word given in the alphabetical order. Okay, पहले question समझ लेते हैं, फिर alternatives. Arrange the question based on the initial letter, okay, of the word given in the alphabetical order. मतलब क्या? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो सीक्वेंस है ए, फिर उसके बाद आना चाहिए बी, फिर उसके बाद आना चाहिए सी, फिर उसके बाद आना चाहिए डी। अंडरस्टैंडिंग? उसी सीक्वेंस में आप लोग इन चार लेटर्स को अरेंज करो, इन चार वर्ड्स को अरेंज करो। तो इनके अगर फर्स्ट अल्फाबेट्स हम लोग देखते हैं तो है एफ, तो है एस एन सी। क्या है? एफ एस एन सी। तो अब मुझे बताओ अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहला अल्फाबेट कौन सा आता है? ए बी सी। सी के बाद आता है एफ, एफ के बाद आता है एन, एन के बाद आता है एस। मतलब केम आएगा फर्स्ट, फेम आएगा सेकंड, एन से
नेम आएगा Name is थर्ड, the third. एस से शेम आएगा। Name is the fourth. Anyone having any doubts? No, ma'am. No, ma'am. Sure? Yes. Yes, ma'am. बस फिर से क्वेश्चन पढ़ो और आंसर समझो। थोड़ा सा क्वेश्चन का ग्रामर इज वेरी डिफरेंट। Arrange the question based on the initial letter given in alphabetical order. Okay, chalo, let's go to the next question. Practical questions start. Yes. How many meaningful words can be formed using the first, fourth, seventh and eighth letter? Okay, let's start. First. तो first आया, पहले एक बार यहां से ना स्पेशियसली लिख लेती हूं मैं। सुपर फ्लूअस, सुपर फ्लूअस। ओके, अब उन्होंने क्या बोला है? Yes. Kindly mute yourself. Yes. Yes. First is S. Fourth, 1, 2, 3, fourth is E. Then seventh, 1, 4, 5, 6, 7 is L, and eighth is U. So it is SELU. Come on, tell me. What word can you form from this, from these alphabets? SELU. No one? मैम No, you have to use all the 4 alphabets. हम कैसे एक alphabet को छोड़ सकते हैं? So use cannot be the answer, Ved. Okay, now I'll tell you. Selu. It can be used. You know, Selu is what? Selu is name of a place. Okay? Selu is name of a place. So how many meaningful words? Astha, Anjali, Gopal, kindly mute yourself. Yes. So how many meaningful words? Only one meaningful word. So our correct answer is yes, Lu can also be one word. See, again, this becomes a very, it's a very subjective question. हर किसी का आंसर इसमें डिफरेंट हो सकता है. ओके, नियरेस्ट पॉसिबल आंसर जो रहेगा वो हम चूज करेंगे. ओके, यस, आस्था एंड गोपाल, काइंडली म्यूट योरसेल्फ. Yes. Let's go ahead. How many letters are there between the 7th letter from the left and 8th from right in the English alphabets? तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? वापस पूरे इंग्लिश अल्फाबेट्स लिखने पड़ेंगे. ऑप्शन नहीं है. जो अगर लिखना पड़ेगा तो लिखना ही पड़ेगा. Let's start. इसमें हम मैथ भी यूज कर सकते हैं, बट फिर भी मुझे रिस्क नहीं लेना. ओके, यस, चलो. 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा आया बताओ मुझे. 7th लेटर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So G is the 7th. G. Correct. अब आगे क्या बोला है? 8th from the right. So 1, 2, S. 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब बताओ मुझे G और S के बीच में कितने अल्फाबेट्स हैं? 11. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 11. So is your answer D? So is your answer D, everyone? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. D is the correct answer. Yes. Shall we go ahead? Let's go to the next question. Which is the 11th letter to the left of the 4th letter from the right when you write the English alphabets in the backward order? So you have to write the English alphabets here in the
backward order. Okay, let's start doing it. अब सीरीज लिखनी पड़ेगी तो उसमें कोई ऑप्शन तो है नहीं, लिखना तो पड़ेगा. So let's start. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay? Okay? Yes. क्या बोला है? Which is 11th letter to the left of 4th letter from the right. मतलब पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? 4th लेटर कौन सा है, फिर उसका 11th लेटर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. Yes or no? Okay? So let's start. हमें पहले 4th letter from the right find out करना है. So come on, everyone with me. 1, 2, 3, 4. Is it D? Is it D? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. अब उसके बाद 11th letter to the left. हमें towards the left जाना है. 11th letter. Let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So tell me, what is the answer? What is the answer? C. The answer O. is C. P. C. 11th letter. 1 minute. Let me count once again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 11. Oh, so sorry. The answer is O. O. yes. The answer is O. C is the correct answer. Okay. Yes, my dear students. Let's go ahead further. Yes. Okay. Now, alphanumeric sequence puzzle. Okay. Now, till now we were seeing series of alphabets, alphabet series, that is A to Z, forward series, and Z to A, backward series. Now, we are going to mix alphabets and numbers together and we are going to solve the puzzle. Okay. Yes. Let's go ahead further. Now, alphanumeric sequence puzzle is made up with the help of alphabets, numbers, and symbols. Okay? Yes. Let's come to the question. इसमें ज्यादा थ्योरी पढ़ने में कोई पॉइंट नहीं है. इसमें थ्योरी जितना अच्छे से नहीं समझता उतना अच्छे से हमें क्या समझता है? प्रॉब्लम्स. हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, तब हमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आती है. ओके? यस. व्हिच एलिमेंट इज nth? One minute, my dear students. Okay. इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे वो हम लोग समझ लेते हैं. ओके? यस. इसमें हमें कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे? सी, आपको ऐसी अल्फान्यूमेरिक सीक्वेंस दी जाएगी. ओके? इस अल्फान्यूमेरिक सीक्वेंस में वी विल हैव टू फाइंड आउट कि किसके बाद क्या है, किसके पहले क्या है, जो हम लोग अल्फाबेट सीरीज में करते थे. अल्फाबेट सीरीज में एक डिफरेंस ये था कि हमें सीरीज पता थी, आइदर A to Z और Z to A. यहाँ पे वो लोग हमें सीरीज देंगे और उनके हिसाब से हमें राइट से कौन सा लेटर आता है, लेफ्ट से कौन सा आता है, कौन सा नंबर आता है, वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके? सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द सैंपल क्वेश्चंस डायरेक्टली. ओके? यस. Very, very interesting. Full attention with me on the board. Yes, let's start. Question 1, page number 230. How many consonants are there in the above arrangement, each of which is immediately preceded by a consonant and immediately followed by a number? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि consonant मतलब क्या? चलो, कौन बताएगा? What is meant by Vowels consonant? को छोड़ के जो अल्फाबेट सीरीज में है. Sorry, letters. could you please repeat a bit louder, Shifa? Vowels को छोड़ के जितने भी अल्फाबेट सीरीज में लेटर्स है वो कॉन्सोनेंट्स. Yes, vowels को छोड़ के जो भी अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है कॉन्सोनेंट्स. ओके, फाइन, ठीक है, समझ गए. मतलब A-E-I-O-U को छोड़ के जो भी है वो सारे कॉन्सोनेंट्स है. ठीक है. अब उन्होंने क्या बोला है? सीरीज उन्होंने हमें दी है, इसलिए हमें सीरीज में कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. उस सीरीज में उनको किस प्रकार का कॉम्बिनेशन चाहिए वो समझ लेते हैं. हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर? मतलब पहले तो हमें कॉन्सोनेंट ढूंढना है. ओके?
तो हमें क्या ढूंढना है? कॉन्सोनेंट ढूंढना है. फाइन. किस प्रकार का कॉन्सोनेंट? Each of which is immediately preceded by a consonant. मतलब कॉन्सोनेंट के पहले क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट. And immediately followed by a number. मतलब इस कॉन्सोनेंट के बाद में क्या होना चाहिए? नंबर. जानवी, काइंडली म्यूट योरसेल्फ. डू यू अंडरस्टैंड? मतलब कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, नंबर, ऐसे तीन का हमें पेयर चाहिए. मतलब कैन आई से अल्फाबेट, अल्फाबेट एंड नंबर. क्या हमें इस सीक्वेंस में चाहिए? क्या हमें इस सीक्वेंस में चाहिए? यस. तो चलो सीरीज के पास और फाइंड आउट करते हैं ऐसे कौन से कॉन्सोनेंट्स है. ओके. यस. चलो अब लेट्स स्टार्ट विद आर. ओके. आर. क्या आर के बाद है अल्फाबेट? क्या आर के पहले है कोई अल्फाबेट? नहीं. 6 है तो वो चला गया. अब ओ आएगा? नहीं आएगा. टी. क्या टी आएगा? कम ऑन. नो मैम. टी आएगा. चलो टी कॉन्सोनेंट है. उसके पहले क्या कोई कॉन्सोनेंट है? नो मैम. क्या उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट है? नो. ए ई आई ओ यू आर वावल्स. इनको छोड़ के सब कोई कॉन्सोनेंट है. बराबर है. ओ इज अ वावल, सो इज नॉट अ कॉन्सोनेंट. सो मैं क्या वो सीरीज ले सकती हूँ? क्या वो कॉम्बिनेशन? नहीं. चलो आगे के अल्फाबेट पे चलते हैं. ए तो नंबर से घिरा हुआ है, राइट? तो हम ए ले सकते हैं? नहीं. आगे बी. बी के बाद है अल्फाबेट बट पहले एफ. नहीं, तो बी गया. अब ई. ई भी सिंबल से घिरा हुआ है. डब्ल्यू भी नहीं आएगा. अब यहाँ पे देखो एच. एच. चेक चेक. एच आएगा क्या? नो मैम. नो मैम. एच आएगा? नो मैम. नहीं आएगा. फिर आगे देखो, बताओ. नेक्स्ट. सीधे पी आएगा. सीधे पी P. आएगा. पी के पहले जी, उसके बाद 7. यस. 7 आया. ओके. और एक चीज है. मैम एफ. मैम एफ. F. के पहले बी, के एफ बाद के 1. पहले हमने बी B एंड छोड़ दिया. एफ के बाद बट 1. B के बाद F तो था. हमने F कैसे छोड़ यस दिया? मैम. F के बाद आता है नंबर और F के पहले आता है कॉन्सोनेंट. सो B F1 एंड G P7. 2 pairs. So alternative C. C. 2 is the C. correct answer. Okay, my dear students. Shall we go ahead? Do you want to take this down? Please take it down. Yes. Let's move ahead to the next question. How many such vowels are there in the above arrangement, each of which is immediately preceded by a letter, but immediately not followed by a symbol? My God. क्या चाहिए उनको? Vowels. Vowels means what? A, E. I, O, U. ठीक है. ये vowels. Each of which is immediately preceded by a letter. मतलब ये अगर वॉवल होगा तो उसके पहले क्या चाहिए उनको? अल्फाबेट चाहिए, लेटर चाहिए, और नॉट फॉलोड बाय सिंबल. यहाँ पे सिंबल नहीं होना चाहिए. ओके. सो लेट्स स्टार्ट द सर्च. पहला वॉवल कौन सा है? ए. चेक करो ए कहाँ पे है. ओके, यहाँ रहा ए. ए के पहले अल्फाबेट है क्या? नो मैम. नो. ए के पहले अल्फाबेट है क्या? नहीं. नेक्स्ट ई. ई के पहले अल्फाबेट है क्या? नो नो मैम. मैम. ओके. नेक्स्ट आई. आई के पहले अल्फाबेट है क्या? यस. बट क्या एच But there is symbol. आई के बाद सिंबल है? यस मैम. यस. Yes, ma'am. कैन वी पिक इट अप? नो No. मैम. नो. अब आगे ओ. चेक चेक. ओ है क्या? नो. है ना? बिल्कुल है. आर के बाद सॉरी, दैट इज आर के बाद zero. वो That's not O. I'm sorry, that is zero. जीरो. वो तो O है यस क्या? मैम. नहीं. जीरो.
हाँ वो जीरो है, नहीं। जीरो है, राइट जीरो है। अब यू है क्या? चेक चेक। नो मैम। नो, तो योर आंसर इज नन। ए नन। बट आपने मॉड्यूल में, आपके मॉड्यूल में आंसर दिया गया है, क्या आंसर दिया बी। गया? आई थिंक इट्स बी 1। दैट्स अ रॉन्ग आंसर। मैम वो जीरो को ओ कंसिडर कर दिया है। नहीं, उन्होंने, हाँ ऐसा भी हो सकता है मे बी। अगर हम इसको ओ कंसिडर करेंगे तो आंसर आएगा 1। अगर ओ नहीं कंसिडर करके 0 करेंगे, क्योंकि अगर हम सीरीज ठीक से देखें, ठीक है ओ कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ओ 0 ही कंसिडर है वो। करेंगे, मैम वो 0 ही है ना। यस 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 वो 0 है, बट हम लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने 1 क्यों लिखा होगा। ओके मॉड्यूल में we're trying to anticipate, we're trying to understand. Okay, yes, let's go ahead to the next question. Which of the following is the fourth to left of the 12th from the left end? मतलब हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है कि लेफ्ट एंड से 12th कौन सा है, और फिर क्या फाइंड आउट करना है कि उसके लेफ्ट में फोर्थ अल्फाबेट कौन सा है। ओके, फोर्थ अल्फाबेट हो, नंबर हो, सिंबल क्या है वो फाइंड आउट करना है। तो चलो 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड मतलब कहां पे आएगा? लेफ्ट हैंड मतलब कहां से आएगा? फ्रॉम 6। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इज इट ई? इज इट ई? यस मैम। यस मैम। ओके, उन्होंने क्या बोला है? मैम। फोर्थ टू लेफ्ट, मतलब फोर्थ चाहिए वापस। ओके सो यस 1 2 3 4th। इज इट परसेंटेज? इज इट परसेंटेज? नो Is it the fourth मैम। alphabet? Yes. यस मैम। Correct answer is, नहीं समझ में आया? फिर से करूं? ई आया अपना आंसर। ई के बाद 1, ओके फिर एफ, फिर 2, तीसरा और चौथा कौन सा आया? परसेंटेज ही तो आया। यस मैम। Okay, yes. Let's go ahead to the last question for the day. 3 of the following 4 are alike in a certain way based on their positive in the above arrangement and so form a group. Which is one that does not belong to that group? Okay, अब क्या बोला है उन्होंने? 3 of the following 4, 4 alternatives हैं, उनमें से 3 alternatives ऐसे हैं जिनकी अरेंजमेंट, जिनका पैटर्न सिमिलर है। हमें ऐसा कोई पैटर्न चारों में से फाइंड आउट करना है जो सिमिलर नहीं है। वेरी 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 सिंपल इट इज। ओके चलो समझते हैं। यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने? क्या दिया है उन्होंने? 4, ठीक है, ये रहा 4, फिर है क्या? फिर 0, फिर है 6। Okay, I'm sorry, just 1 minute. Yes, yes, क्या दिया है उन्होंने? 4 0 6। अब 4 4 0 और 6 अगर मैं कंसिडर करूं तो क्या आया? 4 और 0 के बीच में 1 और 0 और 6 के बीच में 1। एक अल्फाबेट, नंबर, सिंबल जो भी है वो छोड़ के उन्होंने नेक्स्ट पोजीशन ली है। चलो ठीक है, एफ परसेंटेज ए समझते हैं। एफ परसेंटेज ए, तो एफ परसेंटेज ए अगर हम देखें तो क्या उनके बीच में भी एक एक सिंबल और एक एक लेटर और नंबर छोड़ा है? उन्होंने छोड़ा है, ऑल्टरनेटिव लिया है। ठीक है, अब एट द रेट, हैश और 1 देखते हैं। सो एट द रेट, हैश और 1, क्या इनके बीच में भी एक एक गया है? एक एक छोड़ दिया है? यस हाँ, मैम। एक एक पोजीशन छोड़ दिया है। अब हम लोग लास्ट देखते हैं, डॉलर, देन एच और 9, डॉलर एच और 9। डॉलर और एच के बीच में तो एक पोजीशन छोड़ा है, बट क्या एच और 9 के बीच में एक पोजीशन छोड़ा है? क्या एच और 9 के बीच में एक पोजीशन छोड़ा है? नहीं छोड़ा। मतलब व्हाट इज द ऑड मैन आउट? द ऑड मैन आउट इज डी। डू यू अंडरस्टैंड? इज इट सिंपल? यस। ओके यस। नाउ बस एक ही 5th क्वेश्चन है इस सीरीज से रिलेटेड, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अगर 2 मिनट का पेशेंस रखो तो हम लोग 5th क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। करेंगे?
Yes, ma'am. Okay, let's start with the last question of the series. मतलब सिर्फ एक series अपनी बाकी रहती है. If all the symbols are eliminated from the above arrangement, then which of the following will be fifth to the right of 10th element from the right end? क्या बोला है उन्होंने? इस सीरीज में से आप सारे की सारे सिंबल्स गायब कर दो. तो पहले हमें सीरीज लिखनी पड़ेगी विदाउट सिंबल्स. यस और नो? तो चलो लिख लेते हैं हम लोग. यस, 6 R, then T, 4, A, 8, F, sorry, B, फिर आएगा F, फिर आएगा I, E, W, N, N, मैं No, ma'am. N, 3, 2, V, 5, G, P, T, Q. Correct? Correct? R के बाद में छूट गया O. ओके, या फिर जीरो. देखेंगे देखते हैं. तो हमें क्या करना है? Which of the following will be fifth to the right of 10th element? तो पहले हमें निकालना पड़ेगा 10th element, फिर हमें निकालना पड़ेगा 5th element. Yes or no? Yes or no? Yes, ma'am. Okay, तो चलो 10th element निकालते हैं हम लोग. Okay? Yes, right से कि left से है? Right hand से. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Is it M? Is it M? Yes. Yes, ma'am. अब हमें क्या करना है? Yes. Fifth to the right. Okay. So it is N, 1, 2, 3, 4. And is your answer 5? Is your answer 5? Yes, ma'am. Yes. So that comes to alternative number B as the correct B. answer. Right? Okay. Anyone having any doubts? Do you find it interesting? No. Okay, so see you all tomorrow with the same enthusiasm and same participation as today. Okay? Yes. Bye-bye. See you all tomorrow.